So hey there, welcome back. So this is your Amandeep Singh, and so today we're going to be solving the first problem in the graph algorithm series, where we are solving problems related to graphs. And this is the first video where we will be solving a simple problem on the graphs. And this problem is an easy one, and let's read it. The problem statement is this. The problem name is this 1979, named find if path exists in the graph or not. So what we have been given here is there is a bidirectional graph with n vertices where each vertex is labeled from 0 to n minus 1 inclusive. तो भाई n vertices दिए हुए हैं हमें और उनका लेबलिंग की हुई है 0 से लेके n minus 1 तक. The edges in the graph are represented as a 2D integer array edges, where edges I is a pair denoting a bidirectional edge between vertex ui and vi. Every vertex pair is connected by at most one edge, and no vertex has an edge to itself. You want to determine if there is a valid path that exists from vertex source to vertex destination. ठीक है, that's what you are supposed to do. So you have been given two vertices as well, a source vertex and a destination vertex, and you just want to determine if there exists a path, a valid path from the source to the destination. ठीक है, and given edges and the integer n, source and destination, four elements have been given in the problem statement. The first is edges, then the number of nodes or the vertices, then the source vertex and the destination vertex, and we have to return true if there is a valid path from the source to the destination, and otherwise return false. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, इसको उससे समझते हैं एग्जांपल से. ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, 0 1 2 वाला ग्राफ लेते हैं. सो वी हैव दिस ग्राफ, इसको क्या हो गया, ज़ीरो 1 and then 2. ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास है हमारा ग्राफ. ठीक है, और n 3 है, सोर्स दिया हुआ है 0, डेस्टिनेशन दी हुई है 2. सोर्स 0, डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन इज़ 2. ठीक है, तो यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक जाना है. तो इफ़ देर इज़ अ वैलिड पाथ फ्रॉम 0 to 1 एंड द आंसर इज़ ट्रू. देख सकते हो, एक तो 0 से 2 सीधा सीधा है, एक 0 से 1 गए, 1 से 2 गए. देर आर टू पाथ्स एक्चुअली. देन लेट्स टेक दिस एग्जांपल 0 1 2 0 1 2. बाई डायरेक्शनल एज का मतलब होता है कि we can move from 1 to 0 and then from 0 to 1 as well. That's a bidirectional road, two-way road होती है जैसे हमारी. Then we have 3 4 5. जगह इनमें, हाँ इनमें इसमें है. तो 3 4 5 है, तो मेरे से पूछा गया whether the source is 0 and the destination is 5. So the source here is 0, so this is the source, green कर देते हैं, and this is the destination which is 5. This, so can we reach from 0 to 5? No, false. Why? Because there is no way to reach from 0 to 5. We can reach from 0 to 1, from 0 to 2, from 3 to 5, from 4 to 5, from 4 to 5, but we cannot reach from 0 to 5. There is no path. So for this answer is false. So यही करना आपको एक सेट ऑफ एजेस दिया हुआ है. जैसे इस केस में देखते हैं, ये लेते हैं, तो इस तरह का इनपुट दिया हुआ है. तो ये आपको एडजेसेंसी लिस्ट दिया 0 1, फिर आपको दिया 1 2, फिर आपको दिया 2 0, and then we have this source, then we have this destination which is 2. अब देखो अपने को ये एज सेट ऑफ एजेस दिया हुआ है, सेट ऑफ एजेस वी हैव बीन गिवन, एंड सोर्स दिया हुआ है, ये है, डेस्टिनेशन दी हुई है, ये है. अब सबसे पहले तो वी आर सपोज टू क्रिएट अ ग्राफ.
तो सबसे पहले हम इस एडजेसेंसी लिस्ट से ग्राफ बनाएंगे. सो हाउ वी विल क्रिएट द ग्राफ. ग्राफ सिंपल है. हम क्या करेंगे, एक एडजेसेंसी लिस्ट बनाएंगे. ठीक है, एडजेस दिए हुए हैं हमें, सेट ऑफ एडजेस दिए हुए हैं, तो हमें सबसे पहले ग्राफ बनाना है. तो ग्राफ बनाएंगे 0 से 1, फिर 1 से 2 इटरेट करेंगे ना इस पर एक एक करके. फिर 1 से 2 है तो 1 से 2 के बीच में एक एज बनाया. फिर 2 से 0 है तो 2 से 0 के बीच में एक एज बनाया. और फिर हमारे पास सोर्स भी है, डेस्टिनेशन भी है. ठीक है, ग्राफ बन चुका है. अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है. वंस वी हैव दिस ग्राफ रेडी, वी जस्ट परफॉर्म अ सिंपल DFS फ्रॉम दिस 0 और एक बूलियन एरे रख लेंगे. कीप अ boolean array. So this is a flag array. So what do we have in this? 0 1 2. कितने साइज का बनाएंगे, उतने साइज का जितने मेरे पास vertices हैं. So I have 3 vertices, so I will create a size, I will create a boolean array of size 3. I will create a boolean array of size 3. Cool है. जैसे इस केस में 0 1 2, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 0 पे ट्रू है ना. सबसे पहले फॉल्स है, सब में फॉल्स पड़ा है. फिर मैं इसमें क्या करूँगा तो फिर मैं इसमें 0 से जाऊँगा, इसमें 0 को विज़िट किया, इसको ट्रू कर दिया. फिर मैं 0 से गया, 0 पे विज़िट किया, इसको ट्रू कर दिया. एंड देन फिर क्या करेंगे इसमें, व्हाट वी हैव आफ्टर दैट. हाँ, DFS मार रहे हैं ना, तो 0 पे गए, फिर 0 से 1 पे गए, 1 को विज़िट कर दिया, ट्रू कर दिया इसको. फिर 1 से 2 पे गए, 2 को विज़िट कर दिया. ठीक है, इसको ट्रू कर दिया. और फिर बैक आए, फिर 0 से 2 नहीं जाएंगे क्योंकि 2 ऑलरेडी विजिटेड है. तो मैंने DFS मार दिया, सारे नोड्स विजिट हो गए. अब मेरे पास ये एरे है, यहाँ से मेरे को फाइनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी. तो डेस्टिनेशन मेरा 2 है. तो अगर मैंने देखा डेस्टिनेशन में ट्रू पड़ा है, तो डेस्टिनेशन, इफ डेस्टिनेशन कंटेन्स ट्रू, दैट मीन्स आई हैव विजिटेड दिस 2 समहाउ. किसी भी पाथ से आया हूँ बट मैंने इसको विजिट जरूर किया है. तो दैट मीन्स आई कैन रीच फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन. So for this particular graph, I will return true right there once I find this true at the destination slot. ठीक है. If I would have found false here, then I would have returned false. Simple. तो यही है इसका आंसर, इसका सोल्यूशन. इसका कोड लिखते हैं अपने. ठीक है, सबसे पहले मतलब कोड एडिशनसी लिस्ट तो मतलब बना दें, सिंपल ही है. मैं सिंपल DFS लिखूँगा. तो इसमें कुछ नहीं है, नोड है. तो अभी क्या करेंगे, अपने पास एक बूलियन एरे होगा, लेट्स कॉल इट विजिटेड एरे, ग्लोबल एरे, जिसका साइज़ होगा, जिसमें फॉल्स है और इसका साइज़ n होगा. अब इसको मैं विजिट कर दूंगा इस नोड को. आई विल मार्क दिस नोड टू बी ट्रू. देन फॉर लूप लगाई, नेबर में गए, ये मेरी एडजेसेंसी लिस्ट है. और फिर फॉर नेबर इन एडजेसेंसी नोड, तो यहाँ क्या करूँगा, मतलब उसके नेबर्स पे विजिट किया. एंड देन व्हाट वी विल डू, व्हाट आई एम गोना डू इज़ फॉर नेबर इन एडजेसेंसी लिस्ट, व्हाट आई एम गोना डू इज़, क्या करूँगा, नेबर्स का, अगर नेबर विजिटेड नहीं है तो क्या करूँगा, उसको विजिट कर दूँगा. हाँ, so if not not a neighbor, sorry, visited है. if visited not visited, तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूँगा. अगर विजिटेड नहीं है तो मैं क्या रिटर्न कर दूँगा, ट्रू रिटर्न थोड़ी करना है, इसको विजिट करना है और DFS कॉल करना है यहाँ पे फॉर दैट नोड. ठीक है, कूल है.
ठीक है, that's all. And once I'm done with this, what I will be doing, I will return once I'm done processing this, at the end of this thing, what I'm going to do, I'm going to return क्या visited, ये क्या है, connected तो है ये, visited of ठीक है. इन दिस फैशन आई रिटर्न वंस आई प्रोसेस दिस TFS. ठीक है, कूल है. सो लेट्स जंप टू द कोड इम्प्लीमेंटेशन पार्ट. एंड तो यहाँ सबसे पहले बनाते हैं अपने सबसे पहले बनाते हैं एडजेसेंसी लिस्ट. तो वो तो बनेगी फॉर इटरेट करेंगे इन एडजेस दिया हुआ है ना, एडजेस. ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास एडजेसेंसी लिस्ट बन गई फॉर यू कॉमा वी इन एडजेस, नहीं एन बनाएंगे, नॉट एडजेस, एन. यू अपेंड वी बाई डायरेक्शनल, तो एडजेसेंट वी डॉट अपेंड यू. So once I have my graph prepared, all I have to do is to just write a DFS function. So let's write this DFS function, def. ठीक है, और उससे भी पहले एक विजिटेड एरे बना लेते हैं. विजिटेड, उसमें फॉल्स डाल दिया, मल्टीप्लाई बाय n कर दिया, विजिटेड नोड ट्रू, देन फॉर neighbor in adjacency node if ठीक है, neighbor in adjacency, तो if not visited neighbor DFS neighbor NEIGHBOR, then what after that, ठीक है, what after that उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, DFS कर देना हमें कॉल फॉर n. यहीं पे कॉल कर देंगे DFS एंड ठीक है, DFS में हम पास कर रहे हैं हमारा, क्या कहते हैं इसको, सोर्स विच इज़ सोर्स, और फिर एंड में रिटर्न कर देंगे विजिटेड डेस्टिनेशन. अब दिस इज, यार ऐसा क्यों आ रहा है स्क्रीन पे, रीसेट करते हैं इसको, जूम किया हुआ है फालतू में. ठीक है, यहाँ पे है इस तरह से मैंने एक एडजेसेंसी लिस्ट बनाई, फिर मैंने ग्राफ बना दिया, देन आई क्रिएटेड अ विजिटेड एरे, देन आई परफॉर्म DFS, देन आई कॉल्ड द DFS एंड देन आई रिटर्न वेदर द डेस्टिनेशन हैज़ बीन विजिटेड और नॉट. आई होप आई एम डूइंग इट राइट एंड लेट्स चेक. कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, हाँ ठीक है, इसमें एल्डियन, और या फिर एक काम करते हैं इन रेंज n होगा. ठीक है, हाँ गॉट एक्सेप्ट. ठीक है, तो मतलब वही है, मैं सीधा नॉन इटरेबल ऑब्जेक्ट पे ट्रेड कर रहा था, मुझे लाइक रेंज यूज़ करके ट्रेड करना है. तो लेट्स सबमिट इट. चलो, got submitted. So this is an easy one. So what's the time complexity for this? Since I'm just performing a DFS, the time complexity is going to be big of n, and big of n, and the space complexity would also be big of n because I'm using recursion, and we use a stack space for performing that recursion. Okay, so that's how we will solve these problems. This is the very first warm-up problem for the. So what we learned in this problem is to how to perform a DFS and how to build a graph. So 2 points you should note down. What we learned is how to build a graph
given the edges, and second is how to perform DFS on that graph. So these are two learning points which we learned from this video, and this was a basic warm-up problem. We'll solve. We will like. I'll hope to see you all in the next video with yet another problem. Maybe I'll be busy for this week, or maybe at least for the couple of days. So you may expect. You may not expect. So you should. That you may expect me to be like not uploading videos for the next few days, but after a couple of days I'll be back on the track. Okay, so I hope to see you all very soon in the next video. Till then, stay tuned and bye bye.